Welcome to all. The another topic of your guidance and counseling subject is guidance services at secondary level. Secondary level. Organization of guidance services at secondary level requires planning, supervision, coordination, but by whom? By the head of the institution. Head of the institution. Means at secondary level we need to organize guidance services, but how we can organize guidance services at secondary level? When we plan properly, when we supervise it properly, and it needs a lot of coordination. Head of the institution जो होता है उसको ये सारा कुछ करना है in order to provide guidance services at secondary level. It's not only the head of the institution who has to plan, who has to supervise, who has to coordinate. No, but sometimes it also requires the active participation of parents also. Parents, the staff, or the guidance experts and the guidance experts. With their help, a head of the institution can easily organize the guidance services at secondary level. जब कॉपरेट करेंगे पेरेंट्स भी, जब स्टाफ पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन करेगा, और जब गाइडेंस एक्सपर्ट जो है फुल्ली जो है मैनेज करेंगे चीज़ों को, देन ओनली इट कैन बी पॉसिबल टू प्रोवाइड गाइडेंस सर्विसेज एट सेकेंडरी लेवल. क्योंकि सेकेंडरी लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है हमें ऑर्गेनाइज करना गाइडेंस सर्विसेज को. नाउ how we can what is the need of organization such programs? इससे किस तरह से how can we organize guidance services at a secondary level? By firstly by laying down the objectives. पहला जो हमारा स्टेप होगा वो है laying down objectives. पहले हमें ऑब्जेक्टिव्स इसके लेने हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, कैसे हम कर सकते हैं गाइडेंस प्रोवाइड एट सेकेंडरी लेवल. क्योंकि बच्चे काफ़ी माशाल्लाह बड़े होते हैं, एलिमेंट्री लेवल से आगे होते हैं. सो वहाँ पे पहले हमें ऑब्जेक्टिव्स लेने हैं. देन आफ्टर दैट वी नीड टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज. यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली किस तरह से यूटिलाइज करें इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, वो हमें देखना है. जो भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करें. देन थर्ड स्टेप जो आता है उसमें है सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली प्लानिंग. सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली प्लानिंग ऑफ गाइडेंस वर्क. सो यहाँ पे इफ वी नीड टू प्रोवाइड गाइडेंस, सो यू नीड टू प्लान इट. आपको पहले, चाहे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, चाहे स्टाफ है, चाहे गाइडेंस एक्सपर्ट्स हैं, उनको एक सिस्टमैटिकली और ऑर्डरली प्लानिंग करनी है. हाउ दे विल वर्क ऑन द गाइडेंस प्रोग्राम, हाउ दे कैन प्रोवाइड गाइडेंस. यानी प्लानिंग के तहत उनको गाइडेंस प्रोवाइड करनी है. विदाउट प्लानिंग दे कैन नॉट प्रोवाइड द प्रॉपर गाइडेंस. देन लास्टली there should be the coordination of guidance activities. Coordination of guidance activities. So with these points we can easily provide the guidance. If we follow this steps, we can easily provide guidance at the secondary level. So now let us see what is the need and importance of guidance at secondary level. Let us see what are the needs and what is the importance of guidance services at secondary level. First, for resolving, we need guidance services at secondary level for resolving the basic conflict. जो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट होता है, we need to resolve that. So हमें क्या करना है, यहाँ पे गाइडेंस सर्विसेज प्रोवाइड करनी है टू रिजॉल्व द बेसिक कॉन्फ्लिक्ट्स. यूजुअली बेसिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बच्चों में, लाइक इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉन्फ्लिक्ट होता है,
कहीं पे कास्ट का कॉन्फ्लिक्ट होता है, कहीं पे क्लास का कॉन्फ्लिक्ट होता है, कहीं पे एडजस्टमेंट का कॉन्फ्लिक्ट होता है. सो each and every conflict we need to erase. So for that purpose we need to provide the guidance. Means we need the guidance for resolving simply the basic conflicts. So at for another purpose we need, why we need the guidance services at secondary level, for adjusting to various, or adjusting to various physiological and psychological changes. Like we go through so many physiological changes, like we grow physically, हमारी फिजिकल ग्रोथ होती है, वेट गेन होता है, साइकोलॉजिकल चेंज होती है, माइंड सेटअप चेंज हो जाता है. सो इसमें एडजस्टमेंट करना फिजिकली साइकोलॉजिकली इट्स रियली डिफिकल्ट, एंड स्पेशली व्हेन वी आर एट द एडोलसेंट पीरियड. एडोलसेंट पीरियड पे एडजस्टमेंट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. एक बंदा जो है अपने आप को फिजिकली और साइकोलॉजिकल चेंजेस के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि पहले वो बचपने में होता है, धीरे धीरे करके उसकी चेंजेस आ जाती हैं. सो उसके मूड वेरिएशंस आ जाते हैं, फिजिकल वेरिएशंस भी आ जाती है. सो इस हालत में एडजस्टमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. सो एट दैट स्टेज he needs the guidance. So at secondary level we should provide the guidance in order to adjust the physiological and psychological changes. Then comes next, that is for satisfying relationships, with age mates. मेन हमारा प्रॉब्लम ये रहता है कि हम अलग अलग तरीक़ों से रिलेशनशिप में होते हैं विद डिफरेंट एज ग्रुप्स. जो अलग अलग एज के लोग होते हैं, जो अगर छोटा होगा उसको बड़ा जो है अपने हिसाब से नहीं अंडरस्टैंड कर पाता है, छोटा जो है वो बड़े को अपने हिसाब से अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी अपनी लेवल होती है, दूसरे की अपनी लेवल होती है, अपने अपनी एज के हिसाब से अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है. सो इन दैट केस वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है. क्योंकि आप इसमें एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, जब पेरेंट्स बच्चे को कुछ बोलता है तो बच्चा कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करता है, क्योंकि वो अपने लेवल के हिसाब से सोचता है, और पेरेंट्स भी ऐसे वहाँ पे सोचते हैं कि बच्चा जो है वो हमारे अकॉर्डिंग सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी लेवल अलग होती है, बच्चे की लेवल अलग होती है. वी कैन नॉट कंसिडर अ चाइल्ड कि वो हमारे अकॉर्डिंग चले, या एक बच्चा भी कंसिडर नहीं कर सकता कि बड़े जो है उसके अकॉर्डिंग चले. सो वहाँ पे वी नीड टू प्रोवाइड देम गाइडेंस कि आप कैसे एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके एक दूसरे की एज का रेस्पेक्ट करके एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं. सो इट्स नॉट विद ओनली एज मेट्स, इट्स इसमें डिफरेंट सेक्सेस भी आते हैं, लाइक मेल फीमेल का डिफरेंस भी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बॉयज जो है गर्ल्स को अपने अकॉर्डिंग नहीं समझ सकते हैं, उनका अपना नेचर होता है, उनका अपने अंडरस्टैंडिंग होती है, तो गर्ल्स के भी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है. इन ऑर्डर टू क्रिएट अ coordinate relationship with different age mates or with different sexes, we need to provide the guidance. So then comes next, that is for self-direction. We need to provide guidance for self-direction. Here, the guidance service should be provided at secondary level for appropriate educational or career planning. और इसमें खाली इतना ही नहीं आता है, sometimes we need to provide the guidance for marriage also, और जो भी हमारी social life है उसमें जो जो problems है उनको solve करने के लिए भी means कि एक self direction होनी चाहिए कि where a person can go, what sort of career he should choose, और कौन से educational opportunities वो ले ले, कौन सा educational field वो ले ले, और आगे जाकर मैरिज में उसकी जो प्रॉब्लम्स आती है, जो उसको फेस करना पड़ता है, उसके लिए हम कैसे उसको प्रिपेयर करें, बाय प्रोवाइडिंग हिम प्रॉपर गाइडेंस सर्विस. सो ओवरऑल वी कैन से देयर इज अ कंपल्सरली नीड, और वी कैन से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइडेंस सर्विसेज का होना हमारी लाइफ में, वेदर वो हो एलिमेंट्री लेवल पे, वेदर वो हो सेकेंडरी लेवल पे. सो विद दिस आई कंक्लूडेड. अल्लाह हाफ़िज़.